हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर आरएमओ flashback series. In today's lecture we will be discussing question number 3rd and question number 4th of year 2002. Both these questions are great question. I'm sure आप लोगों को है ना ये क्वेश्चन देखकर मजा आएगा, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी जस्ट गिव यू वन इन्फॉर्मेशन कि 2021 के मैथ्स ओलंपियाड एग्जाम के लिए हमने प्री आरएमओ के बैचेस लॉन्च कर दिए हैं ना। क्लास 8 के लिए देयर इज अ सेपरेट बैच, 9-10 के लिए we have a separate batch for pre-RMO. Again for 11-12 we have a separate batch, right? To enroll in these pre-RMO batches, all you need to do is just fill up this Google form vdnt.in/VOS 2021 Olympiad batches. एंड जो बच्चे आरएमओ या आईएनएमओ बैच में एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए देखो देयर इज अ क्राइटेरिया। आरएमओ बैच के लिए यू मस्ट हैव क्लियर्ड IUQM, दैट इज यू मस्ट हैव गॉट either IUQM certificate or your marks are greater than or equal to 20, right? Or in the previous year if you have cleared pre-RMO, then also you are eligible for RMO exam, RMO batch, right? And those who want to enroll in INMO batch, वो या तो इस बार उन्होंने इनमो का पेपर दिया हो या प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने RMO का पेपर क्लियर किया हो, ठीक है। And to enroll in these batches, just mail me your these credentials on this email ID chetan.garg@vedantu.com, right? And please do not forget to mail me your IUQM or IUQM scorecard or this RMO certificate, right? Even if any one of you have cleared NTSC or NSCGS, then also you are eligible for these batches, right? So let's start the session. This is question third of year 2002 and it is a very good question. And आप लोगों ने अगर काफी बच्चों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, आगे की ईयर्स में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस काफी आए थे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। है ना, क्वेश्चन कह रहा है ABC are positive integers such that A divides B square, that is B square is divisible by A, and B divides C square, that is C square is divisible by B, and C divides A square, that is A square is divisible by C, right? This is the criteria and we need to prove that ABC is divisible by A plus B plus C power 7, right? ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो है ना यहाँ से थोड़ा सा और कुछ रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। अगर B स्क्वायर A से डिविजिबल है तो B पावर 4 will be divisible by A square and A square is divisible by C, तो B power 4 must be divisible by C. I hope ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा होगा। Since B square is divisible by A, तो B power 4 will obviously be divisible by A square, and since A square is divisible by C, that means B power 4 is divisible by C. Similarly, we can say that C power 4 that is divisible by B square, that is divisible by A, right? Because C power 4 is divisible by B square and B square is divisible by A. And by the same logic, A power 4 should be divisible by B, right? So these are the criteria that we can claim, right? अच्छा, अब now let's try to figure out A plus B plus C power 7. If I talk about any term of A plus B plus C power 7, है ना, इसकी किसी भी टर्म में कुछ A की पावर होगी, कुछ B की पावर होगी, है ना, एंड कुछ C की पावर होगी, एंड ऑब्वियसली कुछ कोफिशिएंट होगा, कुछ कांस्टेंट होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट कुछ होगा, है ना, K. अब if we want to prove that A plus B plus C power 7 is divisible by ABC, then we need to prove that ki each and every term should be divisible by ABC. Obviously, agar alpha, beta, gamma, all these are greater than or equal to 1. If all these are greater than or equal to 1, then that automatically implies that this particular term is divisible by ABC. And one more thing, since this is any term of A plus B plus C power 7, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट शुड बी 7, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ वो केसेस एनालाइज करने हैं जिसमें अल्फा बीटा गामा में से कोई एक या दो जीरो है, ठीक है। तो पहले दो जीरोस वाला केस समझते हैं। मतलब लेट्स कंसिडर द टर्म्स व्हिच हैव ओनली A पावर 7 और यू कैन से B पावर 7 और यू कैन से C पावर 7, है ना। अब देखो A पावर 7 के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन ब्रेक इट A पावर 7 एज A इंटू A स्क्वायर इंटू A पावर 4, है ना, ठीक है। A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय C, है ना, तो इतने से टर्म C से डिविजिबल है। A पावर 4 was divisible by B, है ना, तो इतना सा टर्म B से डिविजिबल है एंड A तो ऑलरेडी था ही, तो A C B, है ना, तो आई कैन क्लेम दैट A पावर 7 is divisible by A B C. And by extending the same logic, है ना, B पावर 7 को अगर I will write B square
b power 4 है ना, and similarly c power 7 को if I write c into c square into c power 4, you will see that these terms are clearly divisible by a b c, right? तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ वोट, अब आई होप ये तो समझ में आ गया होगा सबको कि अगर सिंगल टर्म रहती है, मतलब a पावर 7 रहता है, b पावर 7 रहता है, c पावर 7 रहता है, वो पक्के से abc से डिविजिबल है। एंड अगर हर टर्म में मतलब अल्फा बीटा गामा अगर 1 से बड़े हैं, देन ऑब्वियसली वो तो abc से डिविजिबल होगा ही। तो ऑल वी नीड टू फाइंड आर दोज टर्म्स व्हिच आर ऑफ द फॉर्म लेट्स से a पावर r एंड b रेज टू पावर 7 माइनस r, ठीक है, जिसमें कोई एक टर्म नहीं है, जैसे लेट्स से c नहीं है ना। तो वी नीड टू फाइंड दैट whether how this is divisible by abc, right? तो अब यहाँ पर देखो दो चीजें, if अगर ये r जो है, if r is let's say less than or equal to 2, ठीक है, तो a raised to power, it will be either a or a square, तो I can say that this 7 minus r must be greater than or equal to 5, है ना। तो let's consider b power 5, b power 5 को I can write b into b power 4, and clearly b power 4 is divisible by c, है ना, and we have 1b, and obviously a will have a power of 1 or 2, ठीक है, बिकॉज b की पावर हमने मैक्सिमम 5 ली है ना, 5 और 6 कुछ भी होता है ना। तो आई कैन क्लेम दैट दिस इज डिविजिबल बाय a, दिस इज डिविजिबल बाय b एंड दिस इज डिविजिबल बाय c, ठीक है। तो अगर r की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होती है, दैट इज r की वैल्यू अगर 1 या 2 होती है, देन आई कैन से दैट दिस इज डिविजिबल बाय a, b and c. Now if r is greater than or equal to 3, let's consider those cases when r is greater than or equal to 3, ठीक है। तो I will say that this is a cube, or that means this is okay, a cube, and that will be b raised to power 4. This can be the possibility, a power 4 b cube, this can be the possibility, a5 b square, this can be the possibility, a power 6 b, this can be the possibility, है ना। अब clearly if you see, I can say I can write a cube, मतलब if r is greater than or equal to 3, then I can write a cube as a into a square, and clearly a square was divisible by c, and here is a, है ना। तो apart from that a cube we will have some power of b, then that automatically implies that इतना सा part is divisible by b, ठीक है। और a cube को मैंने a into a square लिखा ही है ना। तो अगर a की पावर 3 या 3 से ज्यादा होती है, that is 3 4 5 6 कुछ भी होती है, तो I can definitely write it as a into a square, where a is obviously divisible by a and a square was divisible by c, and rest we have some power of b, है ना, and that will obviously be divisible by b. So we can claim that this thing is divisible by a, b, c. And the same claim we can continue for when the missing term is of a or the missing term is of b. So in total we can claim that the entire expression of a plus b plus c power 7 that will be divisible by abc, ठीक है। मैं फिर से एक बार समराइज करता हूँ। देखो हमने क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी की कोई भी अगर हम टर्म उठाएंगे a प्लस बी प्लस सी पावर 7 की एक्सपेंशन में, इफ वी टेक एनी टर्म, then that term must be of the form a power alpha, b power beta, ठीक है, c power gamma, कुछ a की पावर होगी, कुछ b की पावर होगी एंड कुछ c की पावर होगी, राइट। ऑब्वियसली पावर्स का सम कितना होना चाहिए, पावर्स का सम शुड बी 7, है ना। अब अगर पावर्स तीनों पावर्स 1 या 1 से बड़ी हैं, then automatically implies that this term must be divisible by abc, है ना। अब दो केसेस बचते हैं, या तो पावर में सिर्फ एक सिंगल टर्म है जैसे a पावर 7 या b पावर 7 या c पावर 7, उसको हमने ऐसे तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, एंड वी वर गिवन दैट a square is divisible by c and a power 4 is divisible by b, and hence this entire term is divisible by abc. सिमिलरली अगर a और b दो टर्म्स हैं, या b और c दो टर्म्स हैं, या c और a दो टर्म्स हैं, तो उसको हमने इस तरीके से प्रूव किया कि अगर पावर 2 या 2 से छोटी है ना, देन ये वाली जो पावर होगी सेकंड टर्म की जो पावर है ना, वो ऑब्वियसली 5 या 5 से बड़ी होगी, जिसको हम b into b power 4 में ब्रेक कर पाएंगे, राइट। एंड द सेकंड पार्ट इज डिविजिबल बाय द मिसिंग टर्म, दैट इज c इन दिस केस। अगर पावर 3 या 3 से बड़ी होती है, तो a cube को we will break it into two parts, right, and this was divisible by the missing term, right, and hence we can claim that the entire expression is divisible by a b c, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, एंड सिमिलर से ही क्वेश्चन आगे के आरएमओ के ईयर्स में भी आए हैं, राइट।
चलो तो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक डिसेंट सा क्वेश्चन है, ऑल्दो लॉजिकल है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है। ये कह रहे हैं सपोज दैट द इंटीजर्स 1 से 10 जो इंटीजर्स हैं उनको हमने दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, राइट। ईच पार्ट में 5 एलिमेंट्स हैं एंड ऑब्वियसली डिसजॉइंट मतलब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इन 5 में और इन 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। एंड देयर इज अ कंडीशन कि a1 a2 से छोटा है, a2 a3 से, a3 a4 से एंड a4 a5 से, and b1 b2 b3 b4 b5 they are in descending order, ठीक है। now there are two part of the question। पहले में हमें we need to prove that the larger number in any pair aj bj है ना, any pair is at least 6, जो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा that must be at least 6, ठीक है। देखो let's consider any pair aj bj, ठीक है। ये कोई भी हम पेयर कंसिडर करते हैं। अब एजे में, ठीक है, लेट्स से एजे की कुछ भी वैल्यू है, एजे से छोटे कितने एलिमेंट्स होंगे, जे माइनस 1 एलिमेंट्स, है ना, आर लेस देन व्हाट, एजे डेफिनेटली, बिकॉज ए वाली सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। अब बी वाली सीक्वेंस डिक्रीजिंग में, तो लेट्स से बीजे की हम बात करते हैं, तो आई कैन से 5 माइनस जे, these elements are less than what, बी जे, राइट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस पेयर की, ठीक है, तो इस पेयर में कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, उनसे छोटे कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन द एलिमेंट्स अपीयरिंग इन दिस पेयर, दे विल बी दिस प्लस दिस, है ना, व्हिच इज नथिंग बट 4। तो आई कैन क्लेम 4 elements are less than the elements which are appearing in any of the any of the pair aj bj, है ना। अब 4 एलिमेंट्स इनसे छोटे हैं एंड दे हैव 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन टोटल यहाँ पर बेसिकली जो, अगर मैं मिनिमम से मिनिमम वैल्यूज भी कंसीडर करूं, तो 4 एलिमेंट जो सबसे छोटे हैं, लेट्स कंसीडर देम एज 1 2 3 एंड 4। तो ऑब्वियसली एजे और बीजे में से दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो एक अगर मैं 5 मान भी रहा हूं, देन द वन एलिमेंट मस्ट बी 6, है ना, मतलब उसकी कम से कम वैल्यू 6 जरूर होगी, राइट। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी नीड टू प्रूव कि लार्जर नंबर इन एनी ऑफ द पेयर, इनमें से जो भी बड़ा नंबर है वो कम से कम 6 जरूर होगा। ऑब्वियसली वो 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, बट वो 6 से छोटा नहीं हो सकता। मतलब पॉइंट इज कि ये जो दो नंबर है, ठीक है, ये दोनों 6 से छोटे नहीं हो सकते, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव एंड वी हैव प्रूव्ड दैट। हाउ, हमने देखा कि भाई एजे से किसी भी पेयर में अगर एजे इज अ एलिमेंट, तो उससे छोटे कितने होंगे, जे माइनस 1। एज यू कैन सी, लेट्स से एजे ए4 की मैं बात करता हूँ, तो ए4 से छोटे कितने हैं, 4 माइनस 1 3। ए1 की बात करता हूँ, ए1 से छोटे कितने हैं, 1 माइनस 1 0, है ना। अगर हम बी की बात करें, लेट्स से बी2 की बात करते हैं, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3 एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन बी2 क्लियरली, है ना। एंड इन दोनों का सम 4 आ रहा था एंड व्हाट वी हैव डन, अब हमने यहाँ से क्लेम किया है कि भाई 4 एलिमेंट्स इन दोनों एलिमेंट से छोटे हैं, तो यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स एलिमेंट डेफिनेटली होना चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स 6 से छोटे नहीं हो सकते। तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट जो कि लॉजिकल था, है ना। नाउ लेट्स कंसीडर द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट को ही थोड़ा सा यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया कि लार्जर नंबर जो होगा इन एनी इस पेयर में, वो कम से कम 6 होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर वी हैव हाउ मेनी पेयर्स, 5 पेयर्स, यहाँ पर हम 5 मॉडुलस का सम है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है कि इन सब का सम दैट विल बी 25 फॉर एवरी सच पार्टीशन। मतलब इंडिपेंडेंट कि आप इन ये वैल्यूज को क्या काउंट कर रहे हो, क्या ले रहे हो, ठीक है, इससे इंडिपेंडेंट है, इनका सम दैट विल ऑलवेज बी 25। ये हमें प्रूव करना है। कैसे, देखो, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया कि एजे और बीजे में से किसी भी पेयर में जो ये इन दोनों में से एक एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। नाउ देयर आर 5 सच पेयर्स, तो ये सारे एलिमेंट्स इनमें से मतलब कोई एक एलिमेंट, है ना, वो 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 या 6 से बड़ा। तो इन टोटल 6 या 6 से बड़े वी हैव दीज 5 एलिमेंट्स। तो एक एलिमेंट यहाँ आना चाहिए, एक एलिमेंट यहाँ आना चाहिए, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ। ऑब्वियसली मतलब पॉइंट इज ये जो 5 नंबर है, ठीक है, वो अलग अलग पेयर्स में होंगे। वाई अलग अलग पेयर में, बिकॉज एवरी एलिमेंट, ठीक है, ये जो किसी भी मैं एक पेयर की बात करता हूँ एजे और बीजे की, इसके दोनों एलिमेंट 6 से छोटे नहीं हो सकते। एंड इन टोटल वी हैव
5 एलिमेंट्स है ना, 5 पेयर्स, तो हर पेयर में एक एलिमेंट 6 होगा, एक एलिमेंट 7 होगा, एक 8 होगा, 8 9 एक 10 है ना। तो सिंस मॉडुलस है तो हम इनमें से ये बड़े वाले एलिमेंट्स अलग कर लेते हैं ना, तो दिस विल रिड्यूस टू 6 + 7 + 8 + 9 + 10 माइनस छोटे वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। So this sum is nothing but this sum is 25, and hence we can claim that each pair independent of the partition and that will add up to 25। अब यहाँ पे देखो यार, ये चीज जानना जरूरी है कि इसमें ना फर्स्ट पार्ट को ही यूज किया गया। फर्स्ट पार्ट में बोला गया था कि इसके किसी भी पेयर में दोनों एलिमेंट 6 से छोटे नहीं हो सकते, एंड सिंस वी हैव these 5 distinct pairs है ना, तो दैट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि दोनों एलिमेंट 6 या 6 से बड़े नहीं हो सकते, तभी पॉसिबल हो पाएगा ना। देखो अगर हमने दो एलिमेंट्स इसमें डाल दिया, मान लो हमने लेट्स अज्यूम 6 और 7 इसमें, मतलब A1 और B1 में से एक एलिमेंट 6 है, एक 7, तो 8 9 10 ये तीन पेयर्स हैं, इनको अगर मैं अलग अलग में भी डालूंगा है ना, तो ये 3 में चले जाएंगे, बट नाउ द लास्ट पेयर दे विल हैव बोथ द एलिमेंट्स लेस देन 6, जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है वो एक एक पेयर में जाएंगे, एंड ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 ये भी एक एक पेयर में जाएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टीशन सम विल रिमेन 25। तो अगेन भाई ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो आरएमओ 2002 में दोनों क्वेश्चंस अच्छे थे, ये थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे मुझे तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले 3 क्वेश्चंस के साथ, लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ ईयर 2002, राइट। सो टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।